السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ حلالہ ناول کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ ہاتما انجم کو ڈنر کا مینو بتا کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور ریموٹ سے چینل سرچنگ کرنے لگی۔ تبھی لاؤنج کا دروازہ کھلا اور آنے والے کو دیکھ کر ہاتما حیران ہوئی۔ اینی اپنی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی طرف آئی، جو اس کی یہاں موجودگی میں ابھی تک حیرت میں تھی۔ لگتا ہے ہاتما بھابھی آپ تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ خوش دلی سے بولتی ہوئی صوفے پر ٹک گئے۔ نہیں تو تم کیا لوگی؟ ہاتما کو جیسے آداب میزبانی یاد آئے۔ ابھی تو فریش ایپل جوس۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی جسے خزان کی تلاش میں تھی۔ ہاتما کو اس کا آنا اور اب اس کے انداز کچھ مشکوک لگے تھے، جس کا یقین اگلے پل اسے ہو بھی گیا تھا۔ خزان کی طرح؟ میں تو خاص ان سے ملنے آئی ہوں، آپ خزان کے روم میں ہی جوس بھیج دیجیے گا، اور ہاں ڈنر میں کچھ اچھا بنوا دیجیے گا، کہتے ہوئے اپنے شارٹ کٹ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی اس کے پاس سے گزرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ ہاتما کا انداز جیسے گمسم ہو گیا۔ خزان کے ساتھ اتنی پریکٹس لگتی تو نہیں تھی، کیا پتا ہاتما تم کون سا فندی والا میں سارا دن کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ ہاتما خود سے کہتی کچن میں آئی، تجسس کے ہاتھوں 5 منٹ بعد ہی خود ہی جوس لے کر خزان کے روم میں چلی، جہاں اینی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور خزان کمرے میں نہیں تھا۔ یہ تمہارا جوس خزان کی طرح؟ ہاتما سے جوس پکڑاتے ہوئے سوال کر گئی، جبکہ اینی نے چانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ شاور لینے گئے ہیں، مجھے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں 5 منٹ میں آیا۔ اینی کی بات پر ہاتما نے بھی یقین نظروں سے دیکھا کہ سچ میں خزان نے ایسا کہا تھا۔ آپ جائیں، جا کر ڈنر دیکھیں، میں اور خزان آ رہے ہیں۔ آپ کی اس کمرے میں موجودگی کچھ آکورڈ لگ رہی ہے، آپ تو کشان بھائی کے کمرے میں ہی سوٹ کرتی ہیں۔ اینی کی بات پر ہاتما کا دل خون کھول اٹھا، مگر کمال ضبط سے وہ اینی کو تیز نظروں سے دیکھتی کچن میں آ گئی۔ یہ کیوں آئی ہے یہاں؟ کیا اسے کاشان نے بھیجا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح رہ رہے؟ اوف، کیا کروں میں؟ مجھے آفندی بلا کے لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ اب میرا آفندی بلا میں واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے بس مسز خاصان بن کر ہی رہنا ہے۔ ہاتما انگلیاں مروڑتی ادھر سے ادھر چکر لگاتی، ان سوچوں میں ہی الجھ کر رہ گئی۔ تب جب اس نے خزان کو اپنے سر پر کھڑا اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا پایا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو اتنی سینس نہیں ہے کہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اسے ڈرائنگ روم یا لاؤنج میں بٹھاتے؟ آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جا کر بیٹھو۔ کیوں؟ خزان کے تیکھے انداز پر ہاتما نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا، پھر اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جب سمجھ آئی تو خزان کے پیچھے کھڑی اینی کو دیکھا، جو مانی خیزی سے مسکرا رہی تھی۔ بھابھی کو میں نے کہا بھی تھا کہ یوں اچھا نہیں لگتا، کہتی نہیں جاؤ وہیں جا کر مل لو، اور تو اور جوس بھی وہیں پر لا کر تھما دیا مجھے۔ ہاتما کی بات کو کاٹتے ہوئے معصومے سے بولتی، ہاتما کو زہر لگی تھی۔ آپ ڈنر لگائیں، ان کے لیے مجھے کہیں جانا ہے، اس لیے میں ڈنر میں شامل نہیں ہو سکوں گا، خزان کہتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بھی چلنا چاہیے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے پلٹی، مگر ہاتما نے اسے بازو سے پکڑا۔ یہ کیا تھا سبینی؟ میں نے ایسا کب کہا تھا تم سے؟ سوری بھابھی، اصل میں خزان کو غصہ آیا کہ میں بنا پوچھے اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں، اس لیے مجھے ایسا کہنا پڑا۔ آپ مائنڈ مت کیجیے گا، ویسے بھی آپ کو خزان کے غصے سے کیا لگے، آپ کو تو اب کاشان بھائی کے خواب دیکھنے چاہیے۔ بہت جلد آپ دونوں پھر سے ایک ہونے والے ہیں، اور پھر آپ بھی اچھی جٹھانی کا رول ادا کرتے ہوئے مجھے اپنی دیورانی بنائیں گے۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، پرسوں آؤں گی یہاں رہنے۔ اینی تیز تیز بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہاتما اس کی باتوں پر ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ پھر شام تک ہاتما کو رہ رہ کر اینی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوہا کو کال کر کے سارا غصہ وہاں نکالا۔ دیکھو تو اس چلاک لڑکی کے کام، مجھے خزان کی نظروں میں برا بنا گئی، اور کیسے آئندہ کا لاہے عمل بھی بتا گئی۔ اینی خزان بھائی کی چارمنگ پرسنالٹی پر لگتا ہے لٹو ہو گئی ہے، اور تم ہو کہ ان کی بیوی ہو کر بھی کچھ نہیں کر رہی، تو کیا کروں میں؟ اب کی بار ہاتما کچھ روحان سے لہجے میں بولی، جس پہ سوہا کچھ کہتی رکی، پھر نرمی سے کہنے لگی، دیکھو تم بیوی ہو خزان بھائی کی، تمہیں خود میں اعتماد لا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ تم دونوں کے درمیان کی تکلف کی دیواریں گریں، اور پھر تم ان کو اپنا فیصلہ سنا سکو۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، مگر اس کے لیے تمہیں ان کے دل میں جگہ بنانی پڑے گی۔ سوہا کی باتوں پر وہ فقط ہوں ہاں کرتی رہ گئی، کیونکہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر اس انسان کے دل میں جگہ کیسے بنائے جو اسے دیکھنے کا روادار بھی نہ تھا، سننا تو پھر دور کی بات تھی۔ رات کو جب خزان آیا تو اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہاتما لاؤنج میں بیٹھی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ اس کو مکمل اگنور کرتا اپنے کمرے کی طرف پڑھنے لگا۔ سنیں، ہاتما کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ میں نے اینی کو کمرے میں جانے کا نہیں بولا تھا، وہ خود۔ ہاتما کی وضاحت پر خزان ناگواری سے پلٹا۔ اس بات کو کلیئر اس وقت کرنا چاہیے تھا آپ کو، آپ نہیں۔ دوسری بات، آئندہ اپنے مہمان آپ اپنے تک ہی رکھیے گا۔ وہ کہہ کر جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑا۔ سیکیورٹی گارڈز کا بندوبست کر دیا ہے میں نے آج، اس لیے آج سے آپ بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں سو سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو اس گھر میں کوئی بھوت پریت نظر آئے تو آپ انجم بی بی کو اپنے ساتھ سلا سکتے ہیں، سو پلیز میری پرائیویسی کو ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، جبکہ ہاتما گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ تم کہہ رہی تھی کہ اس کے دل میں جگہ بناؤ، جو اپنے کمرے میں تھوڑی سی جگہ بھی مجھے دینا نہیں چاہتا۔
हातमा दिल ही दिल में सोहा से मुखातिब हुई, फिर सब्र के घूंट गहरा घूंट भरती अपने कमरे में चली गई। कोई नहीं, हातमा बहादुर बना आयतल कुर्सी का वर्द करती हुए खुद को बहलाने में कामयाब होती। आखिरकार 2 घंटे की मशक्कत के बाद नींद की वादियों में उतर गई, और इसके बरअक्स खजानाश 3 रातों के बाद सुकून की नींद सोया, वरना हातमा की मौजूदगी उसे बेचैनी में मुब्तला किए हुए थी। हातमा को कुछ दिनों से एक नंबर से मुसलसल कॉल आ रही थी। वो रिसीव करती तो आगे से कॉल कट कर दी जाती। वो शशुपंज में थी कि कौन हो सकता है, किसके पास इसका नंबर है, क्योंकि ये नंबर तो उसने चेंज किया था, जो सोहा के अलावा किसी के पास नहीं था। अभी तक वो लाउंज में बैठी नहीं सोचों में डूबी थी कि एक दफा फिर से एनी की मौजूदगी उसे परेशान कर गई, जो हाथ में रेड रोज का बुके उठाए अंदर आई थी। कैसे हैं आप खाजान? वो तभी लाउंज में आते खाजान से हेलो हाय करने लगी, जिसके चेहरे के तासुरात इस चीज की गवाही दे रहे थे कि उसे भी एनी की मौजूदगी नागवार गुजरे थे। और हातमा भाभी, आप, ये काशान भाई ने आपके लिए भेजा। आपको देखकर ही अंदाजा हो चुका होगा, क्योंकि काशान भाई जब भी आपसे मिलते थे रेड रोज के साथ ही मिलते थे। आखिर को मोहब्बत जो आपसे बहुत करते थे। एनी बुकेस की जानी बढ़ाती पिछली बात का हवाला देती, जैसे खजान को कुछ जता रही। आत्मा का हलक तक कड़वा हो गया। वो आंखों में शदीद नागवारी लिए एनी को घूरने लगी। तुम्हें ये काम सेब नहीं देते एनी, मुझे अपनी जिंदगी में किसी का इस तरह दखल पसंद नहीं है। अरे आप अभी तक नाराज हैं काशान भाई से। आपको पता है वो कितना परेशान रहते हैं आजकल। आप तो इनसे इतनी शदीद मोहब्बत करती थी, क्या इस मोहब्बत की खातिर भी माफ नहीं करेंगे? एनी आंखें घुमा घुमा कर बोलती, उसे जहर लगी। वो उसके गलत बयानी पर खजान की तरफ देखने लगी, जो एनी की बातों पर इस तरफ ही मुतवज्जा था जैसे वो भी मुत्तफिक हुआ हो कि जब इतनी मोहब्बत थी तब नाराज की कैसे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और प्लीज ये फूलों का टोकरा अपनी तशरीर आवरी के साथ यहाँ से ले जाओ। मैं इस घर से यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम जैसों को यहाँ भी साफ बर्दाश्त करती फिरो। एक बात और, आइंदा से मुझसे अपने काशान भाई के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। पेरेंट्स से जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका, और दोबारा वो रिश्ता किसी सूरत नहीं बनेगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना भी पड़े। आई समझ। हाथ में दो टोक लहजे में बहुत कुछ बावर करवाती अपने कमरे की तरफ पड़ गई। ऐनी गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले तासुरात लिए खजान की तरफ मुड़ी, जिसकी निगाहें इसकी तरफ थी जहां से हाथ में गुजरी थी। खजान ऐनी को अपनी तरफ मुतवज्जा देकर कंधे उचकाकर टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया, मगर जाने से पहले इसके मुंह से निकले अल्फाज ऐनी को जलाकर राख कर इम्प्रेसिव। वो अकेली बैठी बोर होने लगी, तोड़कर लॉन में चली आई, जहाँ एक तरफ बनी क्यारी में लगे गुलाब के फूल इसकी सारी तवज्जो खींच गए। उसे सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है, और ये बात सोहा ने ही काशान को बताई थी। इसलिए निकाह के बाद 3 मुलाकातों में वो उसके लिए गुलाब के फूल ही लेकर आता था, मगर कलैनी के हाथ में देखकर और उसकी बात सुनकर जैसे उसे फूलों से ही नफरत होना शुरू हो गई थी। इसलिए वो एनी की बातों को जहन मिलाते गुस्से से इन फूलों को तोड़ने लगी। इसीलिए वो एनी की बातों को जहन मिलाते गुस्से से इन फूलों को तोड़ने लगी, बिना एहसास के किस तरह फूलों को नोचने से उसके हाथों पर कांटे चुभन का बायस बन रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? खजान, जो ऊपर बालकनी में खड़ा सारी कार्रवाई देख चुका था, अब इसके सर पर खड़ा तेज आवाज में बोला, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हाथ में बेझिझक बोलती उसे जहर लगी। आपको अच्छे नहीं लग रहे थे तो किसने कहा कि आप इनको देखें, इनके पास आए? आपको इस घर में जो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्या इसके साथ ये सब करेंगे आप? वो कड़े तेवरों से पूछता, उसे लाजवाब करके। वो मैं देखिए मोहतरमा, आपकी साय की जो भी है, मेरा से कोई लेना देना नहीं। आपको कुछ अच्छा लगता है या नहीं, कोई चीज़ पसंद है या नापसंद, मगर इस घर में आप अपनी हुकूमत नहीं चलाएंगी, क्योंकि मैं आपको बीवी बनाकर यहाँ नहीं लाया। जैसे मैं आपको और इस हलाला को बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप भी मुझे और इस घर को बर्दाश्त करें। वो दुरुस्त लहजे में बोलता, इसके सुर्ख और लब काटते चेहरे पर एक तेज नजर डालता हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि हाथ में उसकी बातों और लहजे को महसूस करती शर्मिंदगी और गम गुस्से से मुठियां भींच कर रह गई। वो अपने खौलते दिमाग और गुस्से को दबाती अपने कमरे में चली आई, और यहाँ से वहां चक्कर लगाती मुसलसल अपनी इंसल्ट को सोचे जा रही थी। तभी इसके मोबाइल पर कॉल आई। नंबर अनजान था, जिससे वो काफी दिनों से कॉल आ रही थी। हेलो, कौन? तजस्सुस के हाथों हाथमा ने कॉल यस की, और दूसरी तरफ से बोलने का इंतजार करने लगी। कैसी हो तुम? काशान की आवाज उसे भड़का गई। शट अप, आपकी हिम्मत कैसी मुझे कॉल करने की? वो दुरुस्तगी से कहती ना सिर्फ कॉल बंद करके बल्कि इसका नंबर ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। तभी किसी और नंबर से कॉल आना शुरू हो गई, हाथमा समझ गई कि ये भी काशाना फंदी ही है। इसने लब भींच कर कुछ सोचा, फिर मोबाइल उठाकर खजान के कमरे में चले गई, जो बिना दस्तक इसके यूं दंदनाते हुए आने पर खासा बदमजा हुआ था। आप अपने भाई को खुद समझाएंगे, मैं अपना मोबाइल तोड़ दूं? एक दफा ब्लॉक किया, आप किसी और नंबर से ये मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? जब मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो मोबाइल इसके आगे फेंकती तेज आवाज में बोली। खजान ने एक नजर कालीन पे पड़े मोबाइल पर डाली, और दूसरी इस पर, जो शदीद तरीन गुस्से में उसे घूर रही थी। मुझे भी आपकी साय के जाने का कोई शौक नहीं। आपको मैं नहीं पसंद या इस रिश्ते से एलर्जिक है तो इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैंने आपको इस हलाली के लिए मजबूर नहीं किया था। मगर एक बात जिससे मुझे फर्क पड़ता है, और वो ये कि मैं आपकी बीवी हूँ, और बीवी बनकर ही इस घर में आई हूँ। इसलिए जब तक भी आपके निकाह में आपकी जिम्मेदारी हो, इसलिए आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। समझे? आप, वो जिस तरह आई थी वैसे ही वापस चली गई,
और खजाना अभी तक हैरान था कि हाथ में इस तरह इसके सामने बोल कर गई है। इल्म मैनर्ड, बहुत लंबी जबान होती है पाकिस्तान लड़कियों की। वो नागवारी से बड़बड़ाया, फिर नीचे पड़ा उसका मोबाइल उठाकर देखा जहाँ काशान के ही मैसेजेस थे। प्लीज एक दफा बात तो करो, मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आज भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ आत्मा। काशान के मैसेजेस इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ले। इतनी मोहब्बत ही तो बिना पूछे बिना कोई सवाल और जवाब किए तलाक कैसे दे दी थी काशान? वो कॉल बैक करके काशान से मुखातिब हुआ जिसको फौरन से बेशतर काशान ने पिक किया था। हातमा, एक सेकंड काशान। इट्स मी काजान। काजान के तारुफ पर दूसरी तरफ गहरा सुकूत छा गया। लिसन काशान, मैं अपनी बात को बहुत कम दोहराता हूँ, तुम्हारे लिए फिर से कह रहा हूँ, यूं करके दूसरे फरीक को गुस्सा मत दिलाओ, उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करो, बल्कि एतमाद, एतबार और इंतजार से इसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो कि वो तुम्हें माफ कर सके। अगर यूं करते रहोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मामला हल होगा। औरत मोहब्बत कुर्बान कर सकती है, मगर इसकी इज्जत नफ्स और अना को ठेस लगे तो वो कभी माफ नहीं करती। और तुमने तो फिर इसकी इज्जत, इसके वकार और भरोसे का भरे मजमे में जनाजा निकाला था, इसलिए जरा सब्र करो और माफी मिलने का इंतजार करो। बाय। खजान ने कहते हुए कॉल बंद की और मोबाइल को देखकर सर नफी में हिलाने लगा। कहाँ फंस गया मैं आकर, टोटली रॉन्ग खजान। कल से हातमा अपने कमरे में बंद थी, खाना वगैरह भी अंजुम उसे कमरे में ही दे गई थी। वो खजान के अल्फाज पर बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। वो सोहा के कहने के मुताबिक और कुछ अपने दिल की मर्जी पर भी खजान के करीब होने की कोशिश करने लगी थी, मगर इसके अल्फाज ने इसका दिल ही तोड़ दिया था। उफ, क्या करूं मैं, मोबाइल भी इस खड़ूस के पास, पता नहीं अपने कमरे में होगा या बाहर। एक दफा भी इसने इधर झांक कर नहीं देखा कि इसके लफ्जों के तीर से कोई कितना घायल होकर बैठा है। गलती मेरी है जो उस पत्थर दिल से इतनी उम्मीद लगाने लगी थी, वरना दोनों भाइयों की रगों में एक बाप का ही खून गर्दिश करता है। एक दूसरे से अलग हो सकते हैं क्या, मगर मुझे इस शादी को बरकरार रखना है हर हाल में। पर कैसे, उफ, सोहा से कैसे बात करूं मैं? वो बेड पर बैठी इन सोचों में ही उलझी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अंजम अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर वो बदमजा हुई। ये साहब ने दिया है आपका मोबाइल। अंजुम के हाथ से मोबाइल इसने झपटने वाले अंदाज में लिया और उसे बिना देखे तकिए पर उछाल दिया। साहिब कह कर गए हैं रात को कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है, जिसके लिए खाना इस गेस्ट की पसंद के मुताबिक बनना चाहिए, और जो लिस्ट देकर गए हैं मुझे बनाना नहीं आता, इसलिए आप मेरी मदद कर देंगी बीबी जी। अंजुम की बात पर वो चौंकी। कौन मेहमान? इसके जहन में अफंदी बला में से कोई हो सकता है का ख्याल कूदा। ये तो नहीं बताया साहब ने, बस बताया और एक लिस्ट देकर चले गए। अच्छा ठीक है, आप जाकर कमरा साफ करें, तब तक मैं आती हूँ। आत्मा से जाने का कहते खुद अलमारी से सादा ग्रीन कलर का ड्रेस निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। जब आधे घंटे बाद किचन में आई तो अंजुम उसे किचन में हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखाई दी। दिखाएं जरा, क्या लिस्ट थमा कर चले गए आपको कि आप इस कदर सोच विचार में पड़ गई हैं? आत्मा कहती हुई इनके हाथ से लिस्ट थाम कर देखने लगी, जहाँ चिकन पास्ता पुडिंग, चिकन शाशिल और फ्रूट ट्रैफल लिखा हुआ था। इस तरह का मेन्यू किसके लिए हो सकता है? वो सोचती हुई इन डिशेस का सामान निकालने लगी। ये सब सोहा को भी पसंद था, इसलिए हातमा जिसे कुकिंग का बेहद शौक था और ये सारा कुछ सीख चुकी थी, अब ये सब तैयार करना इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहा था। वो गजान के आने से पहले तकरीबन सब तैयार कर चुकी थी। जब गजान आया तब वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि गजान के साथ आती लड़की को देखकर वो हैरान होती रुकी, और कोई 13-14 साल की थी। पिंक पैंट पर व्हाइट टॉप और स्कार्फ में सिर को लपेटे और बिलाशुबा बहुत प्यारी थी। ये तो हातमा भाभी है, लड़की ने मुस्कुराकर बोलने पर हातमा ने उलझन ज़दा निगाहों से गजान को देखा, जैसे जानना चाह रही हूँ कि ये कौन है जो मुझसे वाकिफ है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं हानि हूँ, गजान भाई की बहन। वो गजान की खामोशी पर खुद ही मुस्कुराते अपना तारुफ करवाने लगी, जिस पे हातमा के चेहरे पर खुश आमदीद मुस्कुराहट आ गई। और आप हातमा भाभी, मैंने आपको पिक्चर्स में देखा था काशान भाई के साथ। हानि, बाकी बातें बाद में, पहले फ्रेश होकर आओ, आज तुम्हारी पसंद का डिनर है। खाजान ने इसकी बात काटते हुए उसे कमरे की तरफ भेजा, जिस तरफ अंजुम इसका सामान लेकर गई थी, और खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा, ये देखे बिना कि हातमा के चेहरे के नक्श तन गए थे। अंजुम के डिनर लगाने पर दोनों बहन भाई आकर टेबल पर बैठ के चुपके हातमा अंजुम को उसका खाना कमरे में लाने के लिए इशारा करती। वहां से जाने लगी कि हानि की आवाज पर उसे रुकना पड़ा। भाभी, आप भी हमारे साथ बैठे। बहुत शुक्रिया हानि, ज़रूर बैठा करूंगी आपके साथ, मगर तब जब कोई मेरा असल तारुफ आपसे करवाए। आप खाना एंजॉय करें, फिर बात होती है। वो खामोश बैठे खजान पर एक काटकर नजर डालती वहां से चली गई। हानि ने ना समझी से खजान को देखा, जो बात को समझकर भी अनजान बन गया और हानि की तवज्जो उसकी पसंद की चीजों की तरफ करवाने लगा। ये तो हमारा घर है ना भाई, क्या काशान भाई और आत्मा भाभी इस घर में रहते हैं? हानि खाना खाते हुए काशान से पूछने लगी। नहीं, काशान तो नहीं, पर ये रहती है यहाँ, सिर्फ एक माह के लिए, फिर वापस अफंदी वाला चली जाएगी। इसके सवाल पर वो एक पल को चुप हो गया, फिर बोला, आत्मा भाभी अपनी पिक से भी ज्यादा प्यारी, बहुत क्यूट है। हानि के रिमार्क्स पर खजान फकत सर हिलाकर रह गया, और फिर खाजान ने सब डिशेस को थोड़ा थोड़ा चखा तो उसे एहसास हुआ। अंजुम भी, खाजान की पुकार पर अंजुम जल्दी से हाजिर हुई। जी साहब, ये सब कुछ आपने बनाया है?
اس کے سوال پر انجم پریشان ہو گئی کیونکہ ہاتما نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ غازان کو مت بتانا کہ کھانا ہاتما نے بنایا ہے ورنہ وہ کھائے گا نہیں۔ جی صاحب، تھوک نکلتے ہوئے مدھم آواز میں بولی۔ واہ، بہت مزے کا بنا ہے، سب ذرا چکن شاشل کی ریسپی تو بتائے گا کہ آپ نے کیسے اتنے مزے کا بنایا، اور ساتھ فرائیڈ رائس بھی۔ وہ کھانے سے ہاتھ روکتا ہوا انجم کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا جس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ وہ انجم کو ریسپی نہیں آتی تھی تو میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر سفن کی رہنمائی کی، بہت اچھا بنا ہے سب انجم، آپ تو سب سیکھ گئیں جلدی۔ اپنے کمرے سے بر وقت نکلتی ہاتھ مانا صرف اس کی جان بچا گئی بلکہ اپنا پردہ بھی رکھے۔ اس کے پاس آتی وہ مسکراتے ہوئے بولتی جہاں انجم کو شکر کا سانس لینے پر مجبور کر گئی، وہیں خازان اس کی یوں بات بتانے پر ایک تیز نگاہ اس پر ڈالتا چہرے کا رخ پھیر گیا۔ وہ جان گیا تھا یہ سب ہاتما نے بنا ہے، کیونکہ اس دن ہاتما کے ہاتھ کا فوڈ ٹریفل کھا کر ہی آج لسٹ میں لکھوا کر گیا تھا۔ بہت اچھا بنا ہے سب، ہانی نے بھی رائے دینا مناسب سمجھا۔ اوکے مائی لو، اب تم اپنے روم میں جا کر آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی، پھر تمہیں تمہاری لسٹ میں شامل سب جگہوں پر لے کر جاؤں گا۔ اوکے، اور ہاں بابا کو کال لازمی کر لینا۔ خزان شفقت سے اس کی پیشانی کو چومتا ڈائننگ ہال سے نکلتا ہاتما کے پاس آ کر رک، آپ کو ہانی سے موجودہ رشتہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو رشتہ تھا اور جو بعد میں بنے گا اس کا حوالہ ہی کافی۔ وہ سرگوشی کرنے والے انداز میں بولتا اس کے پاس سے آگے بڑھ گیا، مگر ہاتما نے جا کر اس کا راستہ روکا۔ پھر آپ اسے منع کر دیں کہ وہ بھابھی مت کہے، کیونکہ مجھے اس کے نہ اس بھائی میں دلچسپی ہے اور نہ ہی اس بھائی سے کوئی رشتہ رکھنا ہے، سمجھے آپ؟ وہ کڑے تیوروں سے بولتی اسے ایک آنکھ نہ بھائی، آپ بحث کیوں کرتی ہیں جب آپ کا اور میرا رشتہ فقط ایک ماہ تک ایک ماہ تک ہے نا؟ آپ مانتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ایک ماہ تک ہے، تو پھر اس ایک ماہ تک مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کے نام سے پہچانی جاؤں۔ مسز قازان ہوں میں، اور بہتر ہے کہ آپ میرا تعارف اسی حوالے سے کروائیں۔ وہ مضبوط لہجے میں اسے کچھ باور کرواتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ خزان نے اس کی پشت کو گھورا پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اٹھ کر کچن میں آئی تو باہر لان میں دونوں بہن بھائیوں کو واک کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خزان صبح خیز تھا یہ تو وہ جانتی تھی، مگر ہانی بھی ہوگی دیکھ کر وہ حیران ہی ہوئی تھی۔ بڑے پنکچول ہیں یہ دونوں بہن بھائی۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے کچن میں چلی آئی، ابھی وہ چائے کا پانی رکھ کر فریج سے دودھ نکال رہی تھی کہ دونوں بہن بھائی کچن میں داخل ہوئے۔ گڈ مارننگ ہاتما بھابھی، ہانی اس کی طرف چلی آئی جبکہ خازان کافی میکر کی طرف بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ، چائے لوگی یا کچھ اور؟ ہاتما نے اپنے سامنے کھڑی ہانی سے پوچھا جو سر نفی میں ہلا کے۔ مجھے نہ چائے پسند ہے نہ کافی، میں تو جوس پیتی ہوں مگر وہ بھی ناشتے میں، ابھی تو میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے بھائی کی طرح ہی تھی، ہاتما گہرا سانس بھر کر رہ گئی کہ وہ کن بندھوں میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ تو میری جان تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں انجمی سے ناشتے کا کہتا ہوں۔ قازان اپنی چائے کافی لے باہر چلا گیا، ہانی بس کے پیچھے جانے لگی مگر کچھ یاد آنے پر ہاتما کی طرف مڑی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جہاں سے قازان گزرا تھا۔ آپ کا شان بھائی کو بلا لیں، پھر ایک ہفتہ گھومنے چلیں گے۔ اوکے بھابھی، وہ کہتی ہوئی ایجا پوچھا جبکہ ہاتما جس نے ابھی ایک گھونٹ ہی چائے کا لیا تھا یوں منہ بنا کے جیسے چائے کی جگہ کڑوا بادام منہ میں رکھ لیا ہو۔ پھر یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ جب ہانی کی کال پر کشان نے رات کا ڈنر ان کے ساتھ کرنے کا پرومس کیا، اور جب یہ بات ہاتما کو ہانی کے ذریعے پتہ چلی تو اس کے تو جیسے سر پہ لگی اور تلووں میں بجھی۔ وہ ایک آندھی طوفان کی طرح خزان کے کمرے میں داخل ہوئی جس کے چہرے پر وہی ناگوار تاثرات تھے جو ہمیشہ ہاتما کو اپنے کمرے میں پا کر ابھرتے تھے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ کیسے اس انسان کو میرے گھر آنے کی دعوت دے سکتے ہیں جس کی شکل کے نام سے بھی نفرت ہے مجھے؟ وہ بھڑکی تھی۔ ٹو دا پوائنٹ بات کریں آپ۔ خزان جھنجھلایا کیونکہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا بات کری اور کس وجہ سے۔ آپ اپنی بہن کو خود سمجھائیں گے یا پھر میں اپنے لفظوں میں اسے سمجھاؤں کہ جس بندے کو وہ کال کر کے اس گھر میں بلا رہی وہ نہ میرا کچھ لگتا ہے اور نہ کبھی میں اسے اپنی موجودگی میں اس گھر میں داخل ہونے دوں گی۔ آفندی والا میں بہت جگہ ہے، اس لیے جس کسی سے بھی ملنا ہے آپ دونوں بہن بھائی وہاں جا سکتے ہیں اور رہ بھی سکتے ہیں، مگر مجھے اس طرح مجبور مت کریں میں کوئی اور قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ آپ نے مجھے اگر یہ چھت مہیا کی ہے تو پلیز چھت تلے مجھے بے فکر ہو کر سکون سے رہنے دیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایک منٹ بھی اور نہیں رکی تھی۔ خازان بالوں میں ہاتھ پھیرتا جیسے کسی سوچ میں ڈوب گیا، وہ خود بھی فی الحال اس حق میں نہیں تھا کہ کاشانہ بھی کسی قسم کا رابطہ اس سے رکھے جب تک اس کے دل و دماغ پر چھایا غصہ کم نہ ہو جائے۔ وہ ہانی کو منع کرنے کے خیال سے کمرے سے باہر جانے لگا مگر بیا کی کال اسے روک گئی۔ غازان کب واپس آؤ گے؟ میں مس کر رہی ہوں تمہیں، بیا کی بےتابی پر وہ مسکرا دیا۔ ہر 2 دن بعد تم یہی سوال پوچھتی ہو اور میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ 2 ماہ کے لیے آیا تھا اور ابھی پورا 1 ماہ رہتا ہے لڑکی۔ جانتی ہوں مگر کیا کروں، ہانی بھی چلی گئی ہے، میرا تو دل کرتا ہے میں بھی آ جاؤں، مگر تم ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر گئے ہو تاکہ مجھے یہاں سے ہی فرصت نہ ملے۔ اب تمہارے علاوہ کسی اور پر ٹرسٹ تو کرنے سے رہا، بابا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ کیفے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، ویسے بھی مینیجر ہو تم، اب اتنا تو حق بنتا ہے مس پیا۔ قازانی سے باتیں کرتا ہاتما کو بالکل ذہن سے نکال چکا تھا، اور یہ بھی کہ اسے ہانی سے بات کر کے کاشان کو یہاں آنے سے روکنا تھا، مگر جب تک وہ بیا سے بات کر کے فارغ ہوا اور باہر لاؤنج میں آیا تب تک سرخ پھولوں کا بوکے لیے کاشان بھی لاؤنج کا دروازہ کھولتا
अंदर दाखिल होता जहाँ आत्मा को शिश्तर करके, वहीं काजान भी अपने माथे पर हाथ फेरता, खुद को कोस कर रह गया, जबकि हानि मुस्कुराती उसकी तरफ बढ़ी। ये फूल तो भाभी के लिए होंगे ना भाई? हानि के मुस्कुराते सवाल पर काजान ने हातमा की तरफ देखा, जो नफरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए एक झटके से उठी और जाकर अपने कमरे का इतनी जोर से दरवाजा बंद कर गई कि पूरे घर में आवाज जैसी गूंज कर रह गई। इसके इतने शदीद रद्द अमल पर जहां हानि हैरान परेशान थी, वहीं काशान भी अफसरदगी से सोफे पर टिक गया, जबकि इनके बरक आजान नॉर्मल था, क्योंकि इसके ख्याल में इतना तो हातमा का हक बनता था। भाभी आपसे नाराज है भाई? हानि इसके पास टिक कर पूछने लगी, जिस पर काशान ने गहरा सांस लेकर अपने हाथ में पकड़े सुर्ख गुलाबों को देखा। नाराज नहीं, बल्कि बहुत सख्त खफा है मुझसे वो। इसका दिल दुखाया है, अब इतनी सजा तो बनती है ना। काशान की लबों पर जख्मी मुस्कुराहट थी। हानि ना समझी से खजान की तरफ देखा, जो बिना कुछ भी कहे किचन में चला गया। भाई आप भाभी को मना ले इसमें, मैं भी आपकी मदद करूंगी, बस आप वो सब करें जो भाभी को अच्छा लगता है, जैसे फूल या चॉकलेट्स। हानि अपने भोलपन में बोलती काशान को हंसा गई। अरे मेरी क्यूट प्रिंसेस, तुम्हारी भाभी बहुत सख्त दिल बन चुकी है, वो अब फूलों और चॉकलेट से भी राजी नहीं होती है। तो आप जाकर सॉरी बोले। हानि के मशवरे पर काशान फकत देख कर रह गया, और ये ना कह सका कि वो सॉरी बोलने का मौका भी दे तब ना। चलो उठो, तुम आज का डिनर आफंदी हाउस में करते, मामा भी इंतजार करिए तुम्हारा, काशान हानि से कहता उठ खड़ा हुआ। हानि भी उठती खाजान की तरफ पलटी, जो कॉफी लिए इनकी तरफ ही आ गया। भाई आप भी चले हमारे साथ? नहीं, मुझे वीडियो लिंक मीटिंग करनी है 10 बजे, इसलिए तुम जाओ, खजान नरमी से कहता सोफे पर टिक गया। ओके, मैं अपना मोबाइल ले आऊं, हानि कहती अपने कमरे में चली गई। काशा ने गौर से खजान की तरफ देखा, जो कॉफी के सिप लेता मोबाइल के साथ लगा हुआ था। ब्लैक पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट पहने वो अपने लापरवाह होलिये में भी चार्मिंग लग रहा था। काशान के दिल में अजीब सा ख्याल है, जिसे बुरी तरह झटकता हुआ उठ खड़ा। काजान तुम अकेले क्या करोगे यहाँ? तुम भी चलो हमारे साथ। हानि को आता देखकर काशान बोले बिना ना रह सका। काजान ने सर नफी में हिला। अभी बताया तो है कि मीटिंग है, वैसे भी जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुआ अकेला ही रह रहा हूँ। काजान ने कुछ जताया। भाभी भी तो आपके साथ रहती हैं भाई, वैसे गजान भाई मना सकते हैं भाभी को। हानि पुरजोश लहजे में बोलती काशान को चौंका गई। अरे मेरा जहन इसी तरफ नहीं गया गजान, तो मेरी तरफ से इसका दिल साफ करने की कोशिश तो करो, मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी बात सुनेगी और शायद मुझे माफ भी कर दे। काशान के कहने पर गजान ने एक नजर काशान को देखा और फिर इसकी बात को समझा तो जैसे मुस्कुरा दिया। तुम्हें लगता है काशान कि मैं कुछ भी ऐसा करूंगा? मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो और तुम्हारी माफिया। वैसे भी मुझे दो लोगों में सुलह करवाने का शौक कभी नहीं रहा। फजान हानि को खुदा हाफिज कहता चला गया। काशान ने हानि को देखा, जो कंधे उचका कर रह गई। ये इतना बेमुरवत क्यों है? काशान इससे पूछने लगा, जो मुस्कुराती हुई यासिर नवाज के बारे में बताने लगी, जिनका काजान को लेकर कुछ ऐसा ही रद्द अमल होता था। अरे तुम कब आई? अगले दिन काजान किचन में आया तो हानि को वहां बैठे देखकर हैरान हुआ। मैं बस अभी अभी भूख लगी थी, इसलिए आपसे मिलने के बजाय। किचन में आके भाभी मेरे लिए पास्ता बना रही है, वो हातमा की तरफ इशारा करते बोली, जो अंजुम बी के साथ कोई बात कर रही थी। मैं तुम्हें पिक करने के लिए जाने लगा था, मुझे पता था, इसलिए काशान भाई के साथ चली आई। आए थे मगर आप भी सोए हुए थे, और भाभी भी इनको देखकर किचन में घुस गई। हानि सरगोशी करते हुए खजान को बताने लगी। काशान भाई को देखकर भाभी इतना रिएक्ट क्यों करती है? मैं चाहती हूँ कि दोनों की सुलह हो जाए, इतना प्यारा कपल है इनका। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपना दिमाग इस पर मत जाया करो। मुझे ये बताओ कि बिया को कॉल करके क्या बोला था तुमने? काजान के सवाल पर हानि लब दबा गई, जो कड़े तेवरों से देख रहा था। भाई वो उन्होंने कहा था पहले, फिर मैंने बोला। हानि ने जल्दी से अपनी सफाई देने की कोशिश की। अब गलत बयानी ना करो मुझसे, तुमने उसे पाकिस्तान आने की दावत दी है, बल्कि स्टार भी किया कि वो आएगी, तो फिर तुम वापस जाओगे? अच्छा मैंने कहा ये सब? हानि फीकी मुस्कुराहट ली, आहिस्ता से अपनी चेयर से उठी और फिर भागने वाले अंदाज में किचन से भाग गई। खजान इसकी फुर्ती पर हंसता हुआ उसके पीछे गया। हाथ मैंने हैरान की सी सारी कार्रवाई देखी, पर अपने काम में लग गई। शाम को वो दोनों बहन भाई शॉपिंग पर जाने को तैयार थे। हानि हातमा को साथ चलने का कहने के लिए इसके कमरे में जाने लगी, तो खजान ने रोका। इनका साथ जाना जरूरी नहीं है, खजान इसके साथ जाने के हक में नहीं था। भाई प्लीज, भाभी है वो हमारी। दूसरा, मैंने वहां काशान भाई को भी बुलाया है, दोनों की सुलह करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। वो समझदारी से बोलती इसके कमरे में चली आई, जो सोफे पर बैठी कोई नॉवल पढ़ रहे थे। भाभी हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप भी चले ना। हानि के हम का मतलब था कि वो गजान के साथ जा रही है। हातमा इनकार करते करते रुक गए। चलो चलते हैं, मैं भी बोर हो रही थी। हातमा उसे 10 मिनट का कहती वार्डरोब से ड्रेस निकाल कर तैयार होने लगी। जब नेवी ब्लू ड्रेस में बाहर आई, तो दोनों बहन भाई लाउंज में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। हातमा ने गजान को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो सिर्फ हानि की वजह से चुप था, वरना इसका इरादा बिल्कुल भी उसे साथ ले जाने का नहीं लग रहा था। चले, अपना पर्स संभालती वो उनके पास आ रुकी। वाह, आप बहुत प्यारी प्यारी लग रही, आप बहुत बहुत प्यारी लग रही है ना भाई। है ना भाई? हानि ने उसे आज पहली बार घरेलू हिले से हटकर देखा था, इसलिए बेख्तियार बोलती खाजान का बाजू हिलाकर इसकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करवानी चाहे, जो बिना देखे ही अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालता आगे बढ़ गया।
जल्दी आओ बाहर, इसकी पुकार पर हानि दिल में सोच कर रहे भाई ऐसे ही है, ये तो भी आप ही की तारीफ भी नहीं करते। हानि साथ चलती जैसे खजान के रवैये की सफाई देने लगी, जबकि हातमा का जहन भी आप ही में ही अटक कर रह गया। और फिर हातमा पर यहाँ आकर हकीकत खुली कि इत्तेफाक नहीं बल्कि सारा एक सोचा समझा प्लान था। जब इसने मुस्कुराते हुए काशान को शॉपिंग सेंटर में देखा और उसे अपनी तरफ बुलाती हानि को, वो गम गुस्से के मिले जुले तासरात लिए खजान की तरफ पलटी, जो खुद भी हानि के इस प्लान के हक में नहीं था। वो इस तरह के प्लान करके रोज रोज का सरदर्द नहीं लेना चाहता था। आपने मुझे फिर चीट किया है। हातमा ने बेयकीनी से खजान को देखने लगी। भाभी ये सब मैंने, हानि जल्दी से बोलने लगी। क्यों कि आपने, और क्यों ये सब करे? जब मैंने कहा है कि मुझे अफंदी हाउस में नहीं रहना, आप समझ गए थे, मुझे अच्छा लगा। तो आप मुझे अपने घर ले आए, मुझे सुकून मिला, मगर आप मुझे ज़हनी टॉर्चर करने के ये तरीके अख्तियार करें, क्यों? मैं पसंद नहीं, बीवी के तौर पर कबूल नहीं, तो किस तरह घटिया चालों से बदला लेंगे? जब एक दफ़ा कह दिया कि मुझे दोबारा पहले वाली गलती नहीं करनी है, तो फिर क्यों आप अपने भाई को इस घर में बुला रहे हो? और यहाँ भी वो चुटक कर बोले थे, आप बात को पहले जान तो ले। खजान को भी गुस्सा आ गया। यही तो भूल हुई मुझसे कि मैंने आपको जानने में गलती कर दी, सोहा की बातों में आकर आपको आपके भाई से बेहतर समझा। क्या आप मेरे एहसासात को समझते हो, मुझे अज़ियतों से बचाएंगे? मुझे लगा कि शायद आप मुझे आज़ादाना फैसला करने की हिम्मत देंगे, कि मुझे अब कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखना, मगर मेरी गलती है, मैं दूसरी दफा भी धोखा खा गई। हातमा गुस्से से बोली, भाभी आप। हानि सारी सिचुएशन से कंफ्यूज होती कुछ कहती कि हातमा इसकी बात बुरी तरह से काट गई। नहीं हूं मैं तुम्हारी भाभी, अगर हूं भी तो तुम्हारे इस भाई की निस्बत से हूं। मैं तुम्हारे इस भाई की बीवी हूं, जो अपनी बीवी को अपने भाई के लिए फिर से पेश करने की कोशिशें कर रहा है। जो शट अप, आप लिमिट क्रॉस करिए। खजान की बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। हाथ में करीब आते काशान पर एक निगाह डाले बिना ही बाहर की तरफ दौड़ गई। भाई ये हानि बात को समझ ना पा रही। क्या हुआ है? हाथ में बहुत गुस्से में बोल रही थी। मैंने कहा भी था हानि कि वो सरप्राइज को कभी कबूल नहीं करेगी। काशान की बातें खजान को तैश दिला गई। जब पता था तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो काशान? हानि तो बच्ची है, उसे पता नहीं कि असल सिचुएशन क्या है। तुम उसे इस तरह से यूज मत करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। तुम मुझे तुमने सिर्फ निकाह करने का कहा था, मैंने किया, मगर इन सब ड्रामों की हामी मैंने नहीं भरी थी। इसलिए आज के बाद मुझे इस सब में शामिल मत करना। चलो हानि, खजान सर्द लहजे में बोलता हानि का बाजू पकड़े बाहर गाड़ी के पास हर जो हाथ में मौजूद नहीं थे। ये कहाँ गई है? वो कोफ से बोला। भाई क्या भाभी की शादी आपसे हुई? वो जो पहली सूरत हाल पर बेजार था, हानि के सवाल पर गहरा सांस भर कर रह गया। हानि ये बात घर चलकर होगी, और प्लीज तुम बिया बी जमालू का रोल अदा करते हुए बिया को कॉल मत कर देना। मैं मजीद टेंशन पाला नहीं चाहता। पहले ही सब में फंसा हुआ खजान के दो टोक अंदाज पर हानि कुछ कहते रुके, और हातमा की तलाश में इधर उधर देखने लगी, मगर वो यहाँ होती तो नजर आती। अभी क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया इन मेहतरमा ने? खजान बड़बड़ाता हुआ हानि को गाड़ी में बैठने का कहता, खुद शॉपिंग सेंटर की पार्किंग से बाहर निकलता, इधर उधर देखता, उसे ढूंढने लगा। कहाँ चली गई ये लड़की? क्या खुद ही घर चली गई? इसका फोन नंबर? आज पहली दफा खजान को पछतावा हुआ, किसने इसका नंबर क्यों नहीं लिया। तभी चलते हुए खजान की नजर एक वजूद पर पड़ी, जो सीमेंट के बने बेंच पर बैठा, शायद नहीं यकीनन रो रहा था। खजान इसके करीब आता बेख्तियार गहरा सांस भर कर रह गया। आप इतनी जज्बाती क्यों है? खजान की अफसोस भरी आवाज इसके कानों में पड़ी तो उसने जल्दी से हाथ से अपना चेहरा साफ किया। चलिए, यही रात गुजारने का रात है। उसे वही जमे देकर खजान झुंझलाए। मुझे नहीं जाना इस घर में। मुझे क्या फायदा फंदी हाउस से निकलने का, अगर यहाँ भी इन सब लोगों ने ही मेरे मुंह उठा कर आना है। आप जाए यहाँ से, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। आत्मा भी की आवाज में बोली। बस एक दफा और आपसे कहूंगा कि चले, वरना फिर यहीं बैठकर रोने का शौक पूरा कर लीजिएगा। मुझे औरतों के नखरे उठाने का इतना शौक नहीं है मोहतरमा। वो अपने असली अंदाज में वापस आया। हाथ में नम आंखों से इस पत्थर दिल को देखा, जो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा था। और जब से इसका निकाह हुआ था, ये पहली बार हुआ था कि गाजान इस कदर तवज्जो से उसे देख रहा था। तो ना उठाइए, मैं कब कह रही हूँ कि आप। लगता है प्यार की जबान आपकी समझ से बालातर है। खजान कहता उसे कलाई से पकड़ता अपने साथ ले आया। वो गजान के इस अमल पर हैरान होती गाड़ी तक चले आई। चले बैठे, बाकी की कॉन्फ्रेंस घर जाकर करेंगे। गजान ने इसके लिए पिछला दरवाजा खोला और फिर इसके बैठने पर खुद ड्राइविंग सीट संभाली। साथ वाली सीट पर हानि पर जमान थे। वो तीनों सारा रास्ता खामोश रहे थे। घर आकर हातमा अपने कमरे में चली गई तो वो दोनों गजान के कमरे में चले आए। तुम्हें बताने का ये मकसद है कि तुम अपने भाई की दोस्त भी हो, इसलिए बिया को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सफाइयां देने से बहुत एलर्जी है। खजान ने हानि को सारी बात क्लियर कर दी थी। जी भाई, क्या आप भाभी को छोड़ देंगे? हानि के सवाल पर खजान के लब एक पल को आपस में पेवस्त हो गए। जाहिर है जब इन दोनों में सब ठीक हो जाएगा तो छोड़ना तो पड़ेगा। एनीवेज, तुम इन सब बातों को अपने जहन पर सवार मत करना, और जाओ अंजुम भी से बोलो आज कुछ भी बना है तो दे दे। तुम्हारे चक्कर में डिनर भी गोल हो गया था। खजान हल्के फुल्के अंदाज में कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा कि हानि की आवाज पर रुका। वैसे भाई भाभी आपके साथ ज्यादा सूट करती है। हानि कहती, ये चापुट पागल। खजान इसके अल्फाज पर मुस्कुराया।
दूसरी तरफ हाथमा जो खामोशी के साथ बेड पर बैठी थी, दरवाजे पर नॉक होने के बाद दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां हानि को देखकर वो मुस्कुराई। आ जाओ हानि, हाथमा ने उसे जैसे अंदर आने का हौसला दिया। आई एम सॉरी भाभी, हानि शर्मिंदगी से बोली। अरे सॉरी क्यों? हानि के अल्फाज उसे हैरान कर गए। मुझे पता नहीं था कि आपका शान भाई से क्यों नाराज है, और ये भी कि आपकी शादी खजान भाई के साथ हुई है। हानि की वजाहत पर हाथमा के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी। वो इस बात पर पुरसुकून हुई हो गई थी कि खजान ने कम अज कम इसकी असल शिनाख्त तो करवाई, वरना जब भी हानि उसे भाभी कहती या कशान का हवाला देती, वो सब्र के घूंट भर कर रह जाती थी। कोई बात नहीं, वैसे भी इस बात को लेकर मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे खजान भाई से नाराज थी। आत्मा ने उसे अपने पास बिठाया। खजान भाई बहुत अच्छे हैं, आप इनसे भी नाराज मत हो। हानि ने जैसे खजान की सिफारिश करना चाही। आत्मा मुस्कुरा दी। ओके, तुमने कह दिया है तो अब मैं इनसे सुलह अब तो मुझे इनसे सुलह करनी पड़ेगी। तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा? चलो तुम्हें तुम्हारी पसंद का कुछ बना कर दूं। हाथमा उसे लिए किचन में आ गए। पर अगले कुछ दिनों में खजान ने बात नोट की कि हाथमा और हानि एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। जब देखो दोनों एक साथ पाई जाती थी, बल्कि अगर खजान ने हानि को कहीं बाहर जाने की ऑफर की, तो हानि के मुंह से भाभी भी साथ चलेंगी के अल्फाज ही सुनने को मिले थे, जो खजान को खौफ में मुब्तला कर रहे थे। वो इनका यूं करीब आना इस रिश्ते के हवाले से दोनों में बढ़ती नजदीकियां खजान को परेशान करने के लिए काफी थी। वो इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता था कि इनका साथ सिर्फ कुछ दिनों का है। हानि, क्या तुम हर वक्त भाभी भाभी करती रहती? अभी भी वो हानि को यासिर नवाज से बात करते देखकर वही टिक गया था, मगर इसकी हर बात में भाभी और भाभी की तारीफ सुनकर खजान झुंझुला कर बोला, हाँ तो भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतने मजे मजे के खाने बना कर देती है। क्या इनकी बात ना करो बाबा से। हानि फोन रखते हुए मुंह फुलाकर बोली, तुम जानती हो ना कि वो तुम्हारी असल भाभी नहीं है, इसलिए इनको भाभी बोला करो जैसे तुम बिया को बोलती। आप ही बोला करो जैसे तुम बिया को बोलती हो। फज़ान ने एक तेज निगाह इस पर डाली। पर बिया आपी से तो आपकी शादी नहीं हुई है, अब भाभी से हुई है तो मैं इनको भाभी ही कहूंगी ना। और दूसरा बाबा भी कहते हैं कि वो मेरी भाभी है। हानि की हर धर्मी खजान को एक आंख ना पाई। तुम्हें 10 दिन हो गए यहाँ आए, बस इतनी छुट्टियां काफी है, और इतना है घूमना मुनासिब है, इसलिए मैं 1-2 दिन तक तुम्हारी टिकट करवाने लगा हूँ वापसी की। वो फैसला करते हुए बोला, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हानि के रूहान से लहजे पर भी काजान को कोई फर्क न पड़ा। तुम बहुत ऊट पटांग काम करने लगी हो, एक तो बिया को भी पाकिस्तान आने के मशवरे दे रही थी, और दूसरा इस भाभी को भी छोड़ नहीं रही। इसलिए पहले तुम यहाँ से निकलो, फिर इस बिया को भी हैंडल कर लो। फसादी लड़की का रोल कब से अदा करना शुरू कर दिया तुमने? खजान का अंदाज बेलचक था। हानि मुंह बनाते हुए उठ गई। ये अंदाज पक्का नाराजगी वाला था, और खजान को पता था कि ये सिर्फ इसलिए था कि खजान इसका जाना कैंसिल कर दे। मगर खजान इस बार ब्लैकमेल नहीं होना चाहता था। वो हातमा को अब तक एक घर के फर्ज से ज्यादा अहमियत नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था कि रिश्ता जल्द या बदी टूटने ही वाला है। क्या बात है हानी, इतना मुंह क्यों सूजा हुआ है? हातमा इसकी पसंद की मैक्रोनी बनाकर लाई तो उसके चेहरे पर बजे 12 देखकर पूछ बैठी। भाई मुझे वापस लंदन भेज रहे, वो उदासी से बोली। क्यों इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हारी छुट्टियों में 10 दिन पड़े। आत्मा हैरानगी से बोली। भाई कहते हैं कि इनके लिए परेशानी का बायस बन रहे हो। हानी मैक्रोनी का प्याला अपने सामने रख दी, अपना दुखड़ा सुनाने लगी, जबकि हाथ में इस बात का मतलब समझने की कोशिश में हलकान होने लगी कि ऐसी भी क्या परेशानी जिसकी वजह हानि की जात थी। तभी इसके दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। हाथमा ने अपनी बात अधूरी छोड़ते इसके तासुरात देखे जो उसकी बात की तस्दीक कर रहे थे। हाथमा एक फैसला करती झटके से उठी और खजान को तलाश करने लगी। आपको मुझसे क्या मसला है? वो उसे लाउंज में ही आता देखकर रुक कर बोली थी। सीधी बात करें, आप क्या कहना चाहती हैं? हाथमा की वो अचानक मुखातिब करने पर खजान कुछ हैरान हुआ। आपको मैं नहीं पसंद, मान लिया मुझसे बातचीत नहीं करनी, ठीक है, मगर आप किसी और को उस चीज की सजा कैसे दे सकते हैं? अगर किसी के साथ मैं हंस बोल लेती हूँ तो आपको क्या मसला है? हातमा का इस तरह बास पर्स करना उसे अच्छा नहीं लगा था। वो हानि के झुके सर को देखता सारी बात समझ गया, इसलिए अपने लहजे में शामिल तलखी को छुपा ना पाया। आपका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप ही मेरे और मेरी बहन के मामले से दूर ही रहें तो बेहतर है। आपको हानि की फिक्र करने की जरूरत न आज है और न कल होगी, क्योंकि आपका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। एक कागज के बने रिश्ते को हकीकत की आंख से देखने की जरूरत ना मुझे है और ना आपको होनी चाहिए। वो चबा चबा कर बोलता, इसकी दिली कैफियत से बिल्कुल बेनियाज, इसके चेहरे पर छाए तकलीफ और तासुरा से अनजान। अपने लहजे की करवाहट इसके अंदर तक उतारता वहां रुका नहीं था। हाथमा 2 मिनट के लिए वहां से हिल नहीं सकी थी। शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास एक साथ दिल में जाके थे। फिर 2 दिन के बाद हानि चली गई। हाथमा जो हानि के आने से हर फिक्र से आजाद हो गई, अब फिर से अपने ख्याल में सिमट गई थी। जो पहले कभी थोड़ी बहुत मुमारी या कोई बात खजान से होती भी थी, अब वो भी ना होने के बराबर हो गई थी। हातमा हर इस मंजर से गायब हो जाती जहाँ काजान होता, और ये लाताल्लुक की सिर्फ काजान को ये बावर करवाने के लिए थी कि वो इससे नाराज है। मगर हातमा शायद कभी किसी भूल में थी कि काजान को इस तरह इसके यूं मंजर से हटने से फर्क पड़ेगा। फिर इनकी जमूत का शिकार जिंदगी में हलचल ऐनी ने मचाई, जिसे देखकर काजान गहरा सांस भर के रह गया।
कैसे हो ग़ज़ान? वो बेतकल्लुफ़ से कहती उसके पास टिक गए। गुड। ग़ज़ान के मुँह से फ़कत एक ही लफ्ज़ निकला। उफ़! बहुत बेमुरवत हो ग़ज़ान। मेरा भी हाल पूछ लिया करो कभी तुम। मैं आज स्पेशल तुमसे मिलने आई हूँ। कॉल क्यों अटेंड नहीं करते तुम मेरी? इसके पास जैसे शिकायतों का एक टोकरा था। तुम्हारी मेरी इतनी प्रैक्टिस कब से हो गई कि मैं अब कॉल करके तुम्हारा हाल पूछता फिरूं? क़ज़ान उसे नागवारी से देखता उठ खड़ा हुआ। फ्रैंक होने की कोशिश तो करी हूँ मगर तुम हो के हाथ ही नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ और प्लीज तुम अब इनकार नहीं करोगे। चलो, उठते हुए बोली से पहले कि ग़ज़ान इनकार करता। हातमा स्पॉट चेहरा लिए चली आई। एनी तुम आज फिर आ गई। हातमा का लहजा गरजा सादा था मगर अंदाज मालकाना था। एनी को सख्त बुरा लगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ही घर आपका हो। आत्मा भाभी, आप भी तो इसी घर की फर्द थी और बहुत जल्द दोबारा बन जाएंगी। एनी ने जी भर कर चोट की थी। हातमा ने गुस्से से ग़ज़ान को देखा जो उसकी तरफ ही मुतवज्जा था। आप मेरे साथ आए, मुझे कहीं जाना है और हाँ, मेहमान को यहाँ से ही खुदा हाफिज बोल दे। हातमा हिम्मत करती ना सिर्फ कह गई बल्कि ग़ज़ान का हाथ पकड़ती उसे खींच कर इसके कमरे में ले आई जहाँ एनी हातमा का ये इस्तेहाक देखकर जल भुन कर रह गई। वह हातमा भी ग़ज़ान की उस आनी से साथ चले आने पर खुशगवार तासुरात के साथ इसकी तरफ मुड़ी जो स्पॉट चेहर नजरों से इसकी तरफ ही देख रहा था। हो गया आपका, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज के लिए, इसलिए आप अब अपने कमरे में जा सकती हैं। स्पॉटलाइट और आंखों में नागवारी जैसे उसे इसकी जसारत एक आंख ना पाई। आत्मा खपत का शिकार होती इसके कमरे से निकली मगर लाउंज में एनी को ना पाकर बेख्तियार शुक्र कर गई। खड़ूस इंसान, मैंने तुम्हें इस आफत लड़की से बचाया और तुम उल्टा मुझे सुनाने लगे। हातमा, तुम भी बहुत भोली हो। तुम्हें लगता है कि ये इतना मासूम है जो एनी को इनकार करने के बहाने ढूंढता। अरे इतना रूखा और बेमुरवत इंसान, वो भी ऊपर से मुंह फट। उफ, कहाँ फंस गई मैं। हातमा वही लाउंज में बैठी कुर्ती रही। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट नॉवल के साथ, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।